It's a move. It's The not a MVI MVI. is used to copy the data from any to insert the data in a register. Insert the MVI data any register. Like example. MVI B comma 3E So what will be happen? in register B 3E is to be stored, Means any data previously stored will be removed, will be deleted completely. deleted. Right, Yes. exactly. Anyone is understand whatever I say by Rahul? Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Thank you. So we are proceeding the LXI. Remember, X is denoted as a, yesterday I discussed. What does it mean, X? X is just nothing but a symbol of register pair. After X is nothing but a, there should be a register pair. I is nothing but a immediate. So after LXI, there will be a register pair. And after that 16-bit data. After that 16-bit data or 16-bit address, whatever you say. 16-bit data or 16-bit address, whatever you say. So example, like LXI H comma 8600H. Before the instructions, HL may be any value like 1, 2, 3, 4. But after the instructions, HL should be 8600. It's clear to you? Yes, sir. Yes. सर ये MVI से नहीं हो सकता था? ऐसे हम करते थे तो MVI H, 86 MVI L, 00H. Is it possible or not? Yes, sir. हमारा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बोलो? ये छोड़ के हम ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे सर. कर सकते थे सर. बट ये रहने से भी हम ये क्यों किया? इसका क्यों यूटिलाइजेशन किया? ये तो था ही, फिर भी मैंने इसको क्यों लेकर आया? सर वो 4 बाइट स्पेस ले रहा था, ये 3 बाइट लेगा. Very good, exactly. It's a 2-byte instruction and it's also a 2-byte instruction. So 2 plus 2 is equal to 4-byte instructions, but it's a 3-byte instructions. So that's why we are using the LXI, because it's a 4-byte instruction, but it's a 3-byte instructions. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. It's clear to all? Yes, sir. Okay, very good. So next, just I'm talking about the LXI. LXI is another function is there due to the aim. Remember, aim is called imaginary register. Aim is called imaginary register. Actually, the content of aim is nothing but a content of particular memory location which is located by HL register pair only. How many registers pair are there? BC register pair, D register pair, HL register pair. But aim is only related to the HL register pair, not related to the BC register pair, not related to the DC register pair. Only aim related with the HL register pair. So the content of aim is nothing but a content of particular memory location which is located by HL register pair. Like if I am doing this kind of instructions like LXI H, okay, I'm going to the next page. LXI H, 8500H, move B, M. What does it mean? Say, sir, what are the function of these instructions? First explain what are the function of these instructions. So HL registered pair will store 8500.
Very good. HL register pair will be 8500. Where is the rest of the students? No response from your side. Are you able to understand? Or if you have any kind of queries, so you just please ask me. This is not just like a radio. You are just coming and just listening the song. If you are not able to understand, you ask me. No issues for that. I can explain. But if you are not understanding, but I am saying something, so no use of the class. So you read it for, I am taking the classes from the other colleges. You will be get it from the YouTube. So you get it the video and you just study. No issues for that. I don't have any kind of problem. But if I speak, but you are not speaking, then there will be a problem. You should be speak if anything else. If you not not recall, if you are not able to understand, you are able to understand. You speak should be. Otherwise, it's very difficult. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमको बोलो, हम सॉल्व करने के लिए तैयार है. मगर तुम लोग हेल्प नहीं लेना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब में दुनिया भर का वीडियो है, जाओ देखो, आराम से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the instructions function is in HL register pair 8500 will be automatically stored. Next, what are the functions of move B, M? It's a very important one, move B, M. Say before the instructions, B registers is 12. Before the instructions, B register is 12, and the content of 8500H is, say, 39. Actually, which is the content of aim. Why, sir? Because in the first instructions, HL will be 8500. So the content of aim is nothing but a content of 8500H. The content of aim is nothing but a content of 8500H. So after the instructions, B will be 39, 8500 will be 39, and HL, whatever it is, it will be the same, no change. Is it clear? I'm repeat once again, just see the content of aim. Here, the content of aim is nothing but a content of 8500 because the HL register pair have it's have 8500. So content of aim is nothing but a content of 8500. ये मेमोरी लोकेशंस का जो कंटेंट है वो आ जाएगा बी रजिस्टर्स में. सर पहले मेमोरी लोकेशन से हम लोग डेटा लाने के लिए क्या यूज कर सकते थे? दैट इज LDA and STA. LDA for लाने के लिए from memory locations to accumulator, and STA from accumulator to memory locations. But now using the aim, you can store in any registers like B, C, D, HL, any registers, right? Remember, aim is related only and only HL register pair, not related with the BC register pair, not related with the D register pair. It's clear to all? Yes, sir. As Irfan bolo. Sir, once repeat, sir. Yeah, no issue, Irfan. LXI H8500H. What are the functions of LXI H8500H? Just see in after the instructions, as I am discussing the previous, LXI register pair. Just see LXI H8600. So HL before the instruction 1, 2, 3, 4. After the instruction, it will be HL will be 8600. Sir, H के जगह में B रहता था तो BC will be 8600. But if I am talking about the aim is related only to the HL register pair.
M is related only to the HL registered pair. Like, just see, LXI H8500H. What are the functions of LXI H8500H? HL register pair will be 8500H. HL register pair will be 8500H. Very good. So what are the functions of move B, M? M is nothing but the content. Actually क्या होता है move B, M में? M का content B में copy होगा. इधर B के जगह में M के जगह में C रहेगा तो C का डेटा B में कॉपी होगा. जो भी रहेगा सेकंड वाला से फर्स्ट वाला में कॉपी होगा. यही मूव का फंक्शंस है. So what are the functions of M? M is nothing but the content of particular memory location which is located by HL register pair. M का कंटेंट मतलब एक मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट होगा जो कि ना जो मेमोरी लोकेशन HL में स्टोर रहेगा और HL में पॉइंटेड रहेगा. HL में कितना अभी स्टोर है 8500. सो 8500 का कंटेंट मतलब M का कंटेंट है. M SREP एंड SREP HL रजिस्टर पेयर के लिए ही है. BC रजिस्टर पेयर एंड D रजिस्टर पेयर के लिए नहीं है. ओनली HL रजिस्टर पेयर के लिए M है. So the 339 will be copied into the B register. Just see this 39 coming into the B register after the instructions. 39 coming into the B registers and 8500 is 39 and HL is 8500. It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Irfan? Irfan, it's clear to you? Irfan, can you hear me? Sir, it's clear now. Okay. Thank you, Irfan. Thank you, sir. Next, I will be discuss the timing diagram, whatever I am discussing the yesterday. So, sir, next another question is there. Sir, what are the functions of INRM? Can you explain me? INRM, yesterday I discussed the INR. So, what are the functions of INRM? Say, if related to these instructions. LXI H8500 and you know 8500 is 39. So, what will be the function of these instructions? What is the INRM? So INRB 3A. already discussed. So INRM you can. 3A. No. I'm just want to know what are the functions will be done. So Rahul, you data. stop. Anyone from others. You are not only a students. So rest of the students just see whether they can give the answer or not. So here M will be increment by 1. M means Memory. memory. Memory will be incremented. No, sir. बोलो सर. हिंदी में बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारा लैंग्वेज में बोलो, कुछ कोई लैंग्वेज में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम सब समझने का कोशिश कर रहे हैं. इधर लैंग्वेज का एग्जाम नहीं हो रहा है. Sir, here M is imaginary register. हाँ, M is the imaginary registers. तो क्या होगा ठीक से बोलो. M equal to M plus 1. M is equal to M plus 1 ये तो होगा, मगर इस एग्जाम्पल स्टोर होगा. हाँ. Irfan, are you want to say something? No, sir. Sir, M equals to M plus 1 होगा sir. M is equal to M plus 1 होगा तो समझ में आ रहा है. इसके साथ बोलेंगे तो तुम लोग जो बोल रहे हो उसी को हम लिख रहे हैं. M is equal to M plus 1. ठीक है सर. नेक्स्ट क्या होगा सर? The content of 8500H, as we are assuming that the HL register pair is 8500H. So in these instructions, after these instructions, so 8500 content will be incremented by 1. So 39 will be 3A. Right? Yes, sir. It's Yes, sir. clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Suraj. It's clear to all. Why not, Om Prakash, Monica, Mamta, these are the people are silent. Why it is silent? You people are there or not?
Yes, sir. So Yes, ये क्या रेडियो चला के रखे हो क्या? सर पिछला क्लास नहीं किए थे सर, छूट गया। तो पिछला क्लास छूट गया तो पिछला क्लास का वीडियो देखो, मैंने तो तुरंत तुरंत दे देता है। उसके बाद कोई डाउट्स है तो पूछो, मैंने तो इसीलिए बोला वीडियो तुरंत दे देता है, उसके बाद तुम देख के तुम उसको क्लास ये नेक्स्ट डे हमको पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So it's clear to everyone? So I am proceeding to the next. So next I will be discuss the timing diagram. Timing diagram with the help of this name, what you can able to understand. Anyone can explain any kind of things. तुमको जो समझ में आ रहा है वही बोलो। टाइमिंग मतलब क्या है, डायग्राम मतलब क्या है, तो क्या होना चाहिए? साइलेंट क्यों? सर किसी भी प्रोग्राम के लिए कितना टाइम टेक करेगा सर, इस वो तो हिसाब से टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम मतलब क्या है तुम्हारा लैंग्वेज? ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर। टाइमिंग पिक्चर टाइम का रेस्पेक्ट में एक पिक्चर ड्रॉ करना ही है टाइमिंग डायग्राम, राइट? यस सर। अभी ये जो टाइमिंग डायग्राम है हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग होगा। हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए टाइमिंग डायग्राम अलग अलग होगा। एक से दूसरा इंस्ट्रक्शंस में जाओगे तो दूसरा टाइमिंग डायग्राम तुमको मिलेगा। तो तुमको अभी पता करना है ये कौन सा टाइमिंग डायग्राम किसके सिलसिले में काम में आएगा, क्या जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए हम टाइमिंग डायग्राम यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। तो टाइमिंग डायग्राम देखो यूज करने के लिए हमारा जो ये है टाइमिंग डायग्राम के लिए हमारा खुद का भी टाइमिंग डायग्राम हो सकता है। जैसे हम सुबह से उठ के रात मतलब नेक्स्ट डे सुबह तक जो जो काम करता है, जो जो टाइम के रेस्पेक्टिव में जो जो काम करता है, इसका एक डायग्राम बनाएंगे तो वो भी होगा हमारा टाइमिंग डायग्राम। Similarly, for every instructions, you know, have a different timing diagram. So sir, हम लोगों का भी अलग अलग टाइमिंग डायग्राम है। जैसे हमारा एक टाइमिंग डायग्राम होगा तो राहुल का दूसरा टाइमिंग डायग्राम होगा, तो प्रीति का अलग से टाइमिंग डायग्राम होगा, तो आंसरी का अलग से टाइमिंग डायग्राम होगा, एंड अरविंद का अलग से टाइमिंग डायग्राम होगा। हर एक पर्सन का अलग अलग टाइमिंग डायग्राम होगा। क्यों बोलो तो सर? सबका एफिशिएंसी अलग है, मतलब ना एफिशिएंसी का बात ही अलग है। एफिशिएंसी का बात ही अलग है, काम अलग अलग है। किसी काम को देखो राहुल, शायद तुम क्या करते हो, तुम सुबह में आकर जाकर मॉर्निंग वॉक में जाते हो, मगर सर हमने तो नहीं जाते, तो हम नहीं जाते तो वो टाइमिंग डायग्राम हमारा टाइमिंग डायग्राम में मॉर्निंग वॉक वाला नहीं रहेगा। तुम सुबह में उठ कर पढ़ाई करते हो, तुम बहुत स्टूडियस बच्चा हो, हम तो एकदम बेकार का स्टूडेंट है, तो हम पढ़ाई करते नहीं है, तो हमारा भी वो नहीं रहेगा, राइट? यस सर। यस सर। तो बेसिकली टाइमिंग डायग्राम एवरी पर्सन्स के लिए, देखो जो पुराना हो गया उसको भूल जाओ, आज एक नया चैप्टर हो रहा है, इसको समझने का कोशिश करो। टाइमिंग डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेमोरी इंटरफेसिंग तुम लोगों को पढ़ाया था? यस सर। कितना हुआ था पता नहीं है क्या? डिकोडर फिकोडर पढ़ाया था? यस सर। यस डिकोडर हो गया था, ठीक है। उसमें भी कोई क्वेरीज नहीं आया आज तक? होम असाइनमेंट दिया था उसको, ना करे हो ना कुछ? सर किए थे, 2 क्वेश्चन नहीं बना था। नहीं बना था तो कोई आज तक तो पूछा नहीं। मैं हर एक दिन पूछता है कोई क्वेश्चन है, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर था डाउट, लेकिन डाउट था तो डाउट घर में रखने से डाउट क्लियर होगा? सर क्लास नहीं हुआ था, कल हुआ तो नहीं, भूल गई पूछना। तो आज भी तो पूछा था, आज ही भूल गए? शुरुआत में नहीं था? शुरुआत में हमारा पहला क्वेश्चन रहता है पिछला कोई क्वेरीज है कि नहीं, ये हर एक दिन में शुरुआत में हम करके दूसरा जाता है। चलो क्या बोल रहा था? टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। तो ये टाइमिंग डायग्राम का बीच में टाइमिंग डायग्राम का डेफिनेशंस क्या होगा, लिखना है तो लिख लो। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। टाइमिंग डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
ये हम चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आज के भी पूरा इंडिया में एंड अब्रॉड में जितने सारे स्टूडेंट है, 80 से 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं है टाइमिंग डायग्राम क्या है। तुम्हारा दूसरा कॉलेज का जो फ्रेंड है, चाहे बीआईटी मिश्रा में है चाहे बीआईटी सिंदरी में है, तुम उन लोगों से पूछना कौन सा इंस्ट्रक्शंस का क्या मशीन साइकिल होता है, कैसे होता है। हम 100% श्योर 99% स्टूडेंट कैन नॉट गिव द आंसर। हम जितना जगह में इंटरव्यू लिए हैं, मैंने पूरा ऐसा ही देखा। इसका रीजंस मैंने जो एनालिसिस किया, एनालिसिस करके देखा, एक्चुअली इन द बुक्स nothing is mentioned for timing diagram and rules and regulations how to do the for a instructions, क्या क्या मशीन साइकिल लग सकता है, कैसे कैसे टाइमिंग डायग्राम होगा, इसका कोई रूल्स कोई बुक्स में नहीं दिया है। तो इसके बाद मैंने एक रूल्स बनाया जो कोई बुक्स में नहीं है, जो हम आज तुम लोगों को बोलने जा रहा हूँ। तो इसके हिसाब से जाओगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस का टाइमिंग डायग्राम क्या होगा तुम बोल पाओगे। इतना याद रखना इम्पॉसिबल है। कौन सा मतलब राहुल क्या करता है, प्रीति क्या करता है, अरविंद क्या करता है, अंजलि क्या करता है, विजय क्या करता है, सुदीप्तो क्या करता है, ये जानना एक पर्सन के लिए इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक रूल्स हम कर देंगे, जो रूल्स के हिसाब से तुमको पता चलेगा किसका क्या टाइमिंग डायग्राम होना चाहिए, किसका क्या कैसे होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो रूल्स में जाओगे तो तुम हर एक इंस्ट्रक्शंस का टाइमिंग डायग्राम बना पाओगे। तो टाइमिंग डायग्राम डेफिनेशंस लिख लो। It's nothing but a diagram which is drawn with respect to time, which is drawn with respect to time, which is drawn with respect to time. Which is drawn with respect to time. It consists of several several machine cycle. It consists of several machine cycle. It consists of several machine cycle. पहले लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं। Several machine cycle. इसके बाद हेडिंग करो machine cycle. Machine cycle is nothing but a particular operations. Machine cycle is nothing but a particular operations. Machine cycle nothing but it's a particular operations. It consists of Sir, particular के बाद particular operations. It consists of several T state. 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 I'm repeat once again. सर टी स्टेट या डी स्टेट? T state. हम कॉपी में लिख रहे हैं, एक बार देख लो। T-state, S-T-A-T. T state. It's clear? यस सर। Several T state. अभी हेडिंग करो T state. It's synchronized with a system clock. 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 It's clear? अभी रियल वर्ल्ड के साथ तुम समझो मशीन साइकिल क्या है, टी स्टेट क्या है, एंड टाइमिंग डायग्राम क्या है। मैंने क्या बोला, तुम्हारा पूरा दिन का जो डायग्राम बनेगा दैट इज टाइमिंग डायग्राम, राइट?
Yes. Yes, sir. अभी मान के चलो सुबह में तुम लोग क्या करते हो, you know, for morning walk, so one machine cycle. Next, you know, breakfast, there is another machine cycle. Say then maybe you know, study, there will be another machine cycle. So fourth, there is a college activities like classes and all. So there is another machine cycle, college machine cycle. Then at the you know, after 4 o'clock or 5 o'clock, when end our college you know, classes and all, then we are going into here and there. So there is another maybe you can go for or see the movies and all. So there is another machine cycle. It is and the next in the evening there is a study machine cycle, and then the last is a sleeping machine cycle. So all the machine cycle are, you know, connected with each other. Is it clear? Same work is called a machine cycle. So every person has several kind of machine cycle. Am I right? Yes, sir. And Sir. this machine cycle is person to person vary. Means if I am talking about the Preeti, if I am talking about the Anjali, if I am talking about the Vijay, if I am talking about the Gautam, if I am talking about the Mamta, Irfan, Ansari, everyone have a different machine cycle. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, if I am compare, this is college. If I am compare the college, in the college there are several classes. Say now it's my class. Before that, maybe Pansar class. Maybe after that, maybe the principal sir class. So you know, if I am dividing this total college into, there will be a classes, and those classes is nothing but a called T state. This is a smaller one. Is a smaller one. It's a T state, right? So machine cycle also dividing into the small smart, and it's a called a T state, and rest you know call is a machine cycle. So if I'm coming into the picture into the microprocessor, then T state is nothing but a synchronized with a system clock. System clock means what are the clock frequency of 8085 microprocessor, sir? Can you recall? 3 to 5 megahertz. 325 3 to 5. 3 to 5. मतलब 3 से 5. Yes, sir. अच्छा, उतना जानकारी तो नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं. तो मान के चलो 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है. 5 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या है? इसका एफ का वैल्यू बोला है. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो टी क्या होगा सर? टी 1 by F. एफ इज इक्वल टू 1 by 5. मेगाहर्ट्ज नीचे रहेगा, ऊपर में जाने से माइक्रोसेकंड होगा. तो इज इक्वल टू 0.2 माइक्रोसेकंड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So 0.2 microsecond is a T state. So this is nothing but a T state. कैसे आएगा? मान के चलो ऐसे करके क्लॉक आ रहा है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर. सिमिलर होगा, हम थोड़ा ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो गया वो छोड़ो. ये है टी स्टेट, ये है टी स्टेट. ऑल आर 0.2 microsecond. All are 0.2 microsecond. Is it clear or not? Yes, sir. So this is that's why it's called synchronized with a system clock. Synchronized with a system clock. This is a clock, and every T will be 0.2 microsecond. Means depend upon the clock frequency of 8085 microprocessor. जो clock frequency रहेगा उसी के ऊपर depend करेगा 0.2 microsecond. If 3 megahertz, then that will be changed. If we are assuming over here the 5 megahertz, if it is a 3 megahertz, so it will be changed again. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can I sir. proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी heading करो. Different machine cycle with T state. Different machine cycle with a T state, corresponding T state. Different machine cycle with corresponding T state. Number one लिखो, opcode fetch.
opcode fetch, opcode fetch लिखो। more or less all the time it's required 4 t state. more or less all the time it's required 4 t state. more or less all the time it's required 4 t state. sometime it's required, sometime it's required, sometime it's required 6 t state. sometime it's required 6 t state. Sir, sometime it requires 6 t state. 6 always require 4 t state. sometime it's required 6 t state. okay, Yes, is it sir. clear? Yes, sir. अब जब समझाएंगे इसके बाद डिटेल्स में तब पता चलेगा तुम लोगों को 4 कब लगता है, 6 कब लगता है। इसके बाद नंबर 2 मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड तुम लोग पूरा लिखो, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड 3 t state required, 3 t state required. number 3 memory write 3 t state required. number 4 IO read 3 t state required. IO read, IO read मतलब कैसे लिखोगे, I/O read. Is it clear? Yes, sir. Next, number 4 IO write, IO write. IO full form sir, IO का मतलब क्या होता है? Input out. Input output. Very good. Input output. Very good. Very good. It's required 3 t state. तुम्हारा सिलेबस में जो है ये 4 और 5 ए पढ़ने से ही हो जाएगा। बाकी और भी 3-4 मशीन साइकिल है मगर उसको तुम्हारा यूज में नहीं आएगा। इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट अभी चलो फॉर्मूला में जाता है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मशीन साइकिल के लिए कितना टी स्टेट चाहिए। देखो सबके लिए 3 ये याद रखो, ज्यादा प्रेशर मत लो। सिर्फ ऑपकोड फेच के लिए कभी कभी 4 कभी कभी 6, कब 4 कब 6 बाद में पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो तुम लोगों को पता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस देख के बोल सकते हो कौन सा 1 बाइट, कौन सा 2 बाइट, कौन सा 3 बाइट। Yes, sir. Yes. पिछला दिन हमें बताया था कि इंस्ट्रक्शन देख के ही तुमको पता चल जाएगा कौन सा 1 बाइट है, कौन सा 2 बाइट है, कौन सा 3 बाइट है। राइट? Yes, sir. तो फर्स्ट one byte instructions. For 1 byte instructions, हेडिंग करो 1 byte instructions, रूल्स बोल के लिख सकते हो, रूल्स फॉर टाइमिंग डायग्राम। 1 byte instructions लिखो, opcode fetch should be required, opcode fetch should be required, opcode fetch should be required plus extra machine cycle, plus extra machine cycle may be required, may not be, plus extra machine cycle may be required, may not be, plus extra machine cycle may be required, may not be।
Point number 2. 2 byte. Opcode fetch plus memory read should be required, plus extra machine cycle may be required, may not be. For 2 byte instructions, opcode fetch plus memory read should be required, plus extra machine cycle may be required, may not be. It's clear? लिख पाए हो? सर 2 बाइट का रिपीट करेगा तो? 2 byte का repeat. For 2 byte, opcode fetch plus memory read should be required, plus extra machine cycle may be required, may not be. I'm repeat once again. For 2 byte instructions, opcode fetch plus memory read should be required, plus extra machine cycle may be required, may not be. Okay. Yes, sir. Next, point number 3. 3 byte instructions. For 3 byte instructions, opcode fetch plus memory read plus memory read, 2 बार memory read should be required, plus extra machine cycle may be required, may not be. Plus extra machine cycle may be required, may not be. I'm repeat once again. For 3 byte instructions, opcode fetch plus memory read should be required, plus extra machine cycle may be required, may not be. सर इस तीनों फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम आया? एक ही प्रॉब्लम है, बोलो तो क्या प्रॉब्लम है? मशीन साइकिल हम बोल नहीं सकते सिर्फ एक कारण में. सर वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट. वाओ, वेरी गुड. एक्स्ट्रा वाला, ये तो सर आप एक क्वेश्चन मार्क्स में रख दिया. मे बी रिक्वायर्ड, मे नॉट बी. मतलब क्या है? कभी कभी जरूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है. अभी हमारे फॉर एक्स्ट्रा मशीन साइकिल के लिए फॉर्मूला, कब जरूरत पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा. एक्स्ट्रा मशीन साइकिल बोल के हेडिंग करो. नंबर 1, if 8-bit data copied from memory locations to register, if 8-bit data copied from memory locations to register, then extra memory read should be required. 8-bit memory locations, you know, I will repeat once again. If 8-bit data copied from memory locations to register, then extra memory read should be required. Point number 2, 8-bit data copied from registered to memory locations, then extra memory write should be required. 8-bit data copied from registered to memory location, then memory write should be required. Create a box like that. It's an important one. It's an important one. यही दो फॉर्मूला है. Is it clear? मेमोरी से रजिस्टर में जाएगा डेटा तो मेमोरी रीड एक्स्ट्रा लगेगा. रजिस्टर टू मेमोरी जाएगा तो बोलो बोलो आंसर ही. सेकंड वाला सर रिपीट करते छूट गया था. सेकंड 2 बाइट के लिए. हेलो 2 बाइट के लिए. नो सर फॉर्मूला मशीन साइकिल फॉर्मूला. मशीन No, साइकिल second फॉर्मूला. 8-bit register to memory. Oh, register. 8-bit data copied from registered to memory location,
8-bit data copied from register to memory locations, then extra memory write should be required. Then extra memory write should be required. I am repeat once again. 8-bit data copied from register to memory location, then extra memory write should be required. Eight-bit data copied from register to memory location, then extra memory write should be required. It's clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर 8 ये फॉर्मूला हो गया खत्म, और कोई फॉर्मूला नहीं है, इससे सब कर पाओगे। अभी हम जो बोल रहे हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी एक्स्ट्रा मशीन साइकिल चाहिए सर? फॉर्मूला में क्या है ऐसा कुछ रजिस्टर टू रजिस्टर? नो सर। No, तो एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं चाहिए। ओके, इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सर, मेमोरी टू मेमोरी? नो सर। Yes, sir. नो सर, नो। एक्चुअली चाहिए होता था, मगर ये होता ही नहीं है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है 8085 में जो मेमोरी लोकेशन से मेमोरी लोकेशंस में कॉपी कर पाएगा। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। अभी रजिस्टर किसको किसको पकड़ेंगे? तुम्हारा बॉडी के अंदर जो है सब रजिस्टर, तुम बाहर से कुछ ले रहे हो मतलब मेमोरी लोकेशन से ले रहे हो। सर एग्जांपल, तुम्हारा 8085 आर्किटेक्चर में जो है सारा का सारा रजिस्टर्स है पूरा आर्किटेक्चर के अंदर। कोई मेमोरी लोकेशंस को बाहर से ले रहे हो, कोई डेटा मतलब कोई मेमोरी लोकेशन से ले रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट्स ए मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर्स। मतलब मान के चलो किसको एग्जांपल दे? प्रीति अभी ऑन है। प्रीति, तुम्हारे पास 10 रुपया था, मैंने बोला मैंने तुमको 1 रुपया दिया, कितना हुआ? 11. कैसे किया? Add कर दी. ऐड कैसे किया? मतलब पेन से किया, कैसे किया? दिमाग से. दिमाग से किया। दिमाग बोल के कुछ नहीं होता है प्रीति, इसके अंदर रहता है ALU। क्या नाम रहता है? Automatic logical. ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर है ऐसा इधर में भी है। तो ALU तुम क्या किया? 10 को पहले ALU के अंदर भेजा, 1 को ALU के अंदर भेजा, फिर उसको ऐड किया, रिजल्ट मुंह से निकाला। तो ये जो तुम भेज रहे हो ना, जो अब सब ALU में भेज रहे हो, ALU छोड़ के कोई अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं हो सकते। ऐसे ALU में जो तुम भेज रहे हो, जो डेटा भेज रहे हो, सब ALU के तुम्हारा अंदर में है। So it's also a register. It's also a register. Okay. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ बोलेंगे क्या मशीन साइकिल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तब जाकर तुम लोगों का और थोड़ा क्लियर होगा। पहले SL नंबर, सीरियल नंबर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट मशीन साइकिल, क्या मशीन साइकिल है। नेक्स्ट टी स्टेट, क्या टी स्टेट है। सीरियल नंबर बोलने का जरूरत नहीं, तुम लोग लिख लो जो कुछ भी। नेक्स्ट देखो, मूव E, B। नेक्स्ट add B। नेक्स्ट INR B। नेक्स्ट DCR B। नेक्स्ट move A, M। next move
M, B. Next, INX B. Next, DCX B. पहले हम जो जा रहा है सारा का सारा इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का है. Am I right? बोलो. सारा का सारा हम 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस लिए हैं. नो सर, नो सर, 1 बाइट है सर. 1 बाइट है ये। ये सब 1 बाइट का है. ठीक, सारा का सारा हम 1 बाइट का इंस्ट्रक्शंस लिए हैं. अभी 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस के लिए फॉर्मूला क्या है? व्हाट आर द फॉर्मूला? ऑफ भूल गए हो? अभी तो लिखा है. Yes, opcode is required. कोड पे हैं? Opcode fetch is required. Opcode fetch is required. Very good. First opcode fetch लिखा. अभी बोलो move A, B का काम क्या है? तो B का डाटा को A में कॉपी करना. वेरी गुड सर. B का डेटा को A में कॉपी करेगा. सर B क्या है? रजिस्टर. सर A क्या है? रजिस्टर. रजिस्टर टू रजिस्टर्स कॉपी हो रहा है. एक्स्ट्रा मशीन साइकिल चाहिए सर? नो सर. So only opcode fetch and that is 4 T state. 4 लिख तो वो भी होगा. It's clear? सर 4 कैसे सर? हाँ? 4 कैसे? 4 टी स्टेट सर. मैंने लिखाया था देखो 4 जरूरत पड़ेगा. मैंने बोला था मैक्सिमम टाइम में 4, कभी कभी 6 के बारे में बोला नहीं. जब बोलेंगे तब पता चलेगा 6 कभी कभी जब जरूरत पड़ेगा. देखो मैंने लिखाया था ऑफकोड फेच 4 टी स्टेट, कभी कभी 6 जरूरत पड़ता है. लिखा था कि नहीं? यस सर. तो अभी जो जो हम बोल रहे हैं सब 4 के ही पकड़ के चलो. 6 हम बोलेंगे बाद में. जब बोलेंगे तो उनको पता चलेगा 6 कब कब जरूरत पड़ता है. अभी बोलने से थोड़ा प्रेशर हो जाएगा. It's clear to you? Q opcode fetch only? यस सर. यस सर. So, B से A में कॉपी कर रहे हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी कर रहे हैं. मैंने बोला रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी करने से कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं लगता है. सिर्फ ऑपकोड फेच, सिर्फ 4 टी स्टेट. क्लियर? यस सर. सर हाँ बोलो अरविंद. नथिंग सर, कुछ नहीं. अच्छा, नेक्स्ट सर एड बी. एड बी क्या करेगा सर? सर B का डाटा और A का डाटा को ऐड करके A में स्टोर करेगा. कैसे करेगा सर? पहले मान के चलो ALU है, राइट? A का डेटा आएगा इधर, B का डेटा आएगा इधर. इधर करेगा A प्लस B, रिजल्ट जाएगा इधर. यस सर. ठीक बोल रहा है कि नहीं? देखो एक्यूमुलेटर A है, एक्यूमुलेटर का जाएगा ALU में, B का डेटा जाएगा ALU में, ALU में A प्लस B होगा, रिजल्ट जाएगा एक्यूमुलेटर में. यस सर. सर A का डेटा जा रहा है ALU में, क्या होगा सर? A रजिस्टर है, ALU क्या है? आर्किटेक्चर के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर ALU था. आर्किटेक्चर के अंदर ALU था. यस. यस सर. तो आर्किटेक्चर के अंदर था मतलब क्या होगा? ALU बोलो. ALU रजिस्टर है. ALU रजिस्टर है, एग्जैक्टली. तो A रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी, A भी रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी, A भी रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी. सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? यस सही है. मैं फिर से बोल रहा हूँ. एक A से ALU में जा रहा है मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी, B से ALU में जा रहा है मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी, ALU से A में जा रहा है मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी. तो देयर इज नो एक्स्ट्रा मशीन साइकिल रिक्वायर्ड. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. यस सर. Yes, sir. यस.
मैं फिर से बोल रहा हूँ ALU A जो ऐड बी कर रहे हो मतलब A के साथ A इज इक्वल टू A प्लस बी तुमने ही बोला है। A इज इक्वल टू A प्लस बी कैसे होता है? माइक्रोप्रोसेसर तो खुद से एडिशन नहीं कर सकता, ये सब करता है ALU में। तो पहले A का डेटा आएगा ALU में, B का डेटा आएगा ALU में, ALU में एडिशन होगा, एडिशन होने के बाद फिर A में जाएगा। देखो सारा का सारा जितना सारा है सब रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी हो रहा है। तो देयर इज नो एक्स्ट्रा मशीन साइकिल, ओनली opcode fetch and only 40 state, right? Yes, sir. यस सर। INRB कितना बाइट का इंस्ट्रक्शंस है? 1 बाइट। 1 बाइट। तो 1 बाइट के लिए opcode fetch तो लिखना ही है, हमने लिख दिया। अभी INRB का फंक्शन क्या है बोलो? INRB B plus 1. B plus 1 बोलो। sir. B plus 1, B is equal to B plus plus 1. 1, B plus 1, B is equal to B plus 1, right? B is equal to B plus 1। तो क्या करेगा? ALU में आएगा, B का डेटा आएगा ALU में, इधर होगा B plus 1, फिर जाएगा B में। B क्या है? B क्या है? रजिस्टर। ALU रजिस्टर। रजिस्टर। रजिस्टर है। Yes, sir. रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर, एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगेगा? No, sir. नो सर। नहीं सर। अच्छा ALU कितना बिट का है? 8 बिट। याद रखना कि बाद में काम में आएगा। तो opcode fetch 40 स्टेट। सिमिलरली DCRB के लिए एक ही होगा, opcode fetch 40 स्टेट, सिर्फ घटेगा एक और तो कुछ नहीं, यस सर। इसीलिए DCRB लिख दिया। मूव A, M क्या होगा सर? पहले तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन से opcode fetch लिख दिया। M मतलब क्या है? से M मतलब है कि जो HL रजिस्टर पेयर में मेमोरी लोकेशन स्टोर है उसके अंदर जो स्टोर डाटा है उसको कॉपी करेगा A के अंदर। मतलब मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी होगा रजिस्टर में। रजिस्टर में। सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है? सही सर। मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी होगा रजिस्टर में। यस सर। राहुल ने जो बोला क्या है? जैसे सर एम मतलब एचएल में जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस में जो डेटा रहेगा वो डेटा आएगा एक्यूमुलेटर में। वेरी गुड। मतलब एक्चुअली वो जो डेटा होगा वो मेमोरी लोकेशंस का ही डेटा होगा। तो मेमोरी लोकेशंस का डेटा आएगा एक्यूमुलेटर में, मतलब मेमोरी लोकेशंस का डेटा आएगा रजिस्टर्स में। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस तो एक्स्ट्रा सर। मशीन साइकिल चाहिए मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर? यस सर। क्या चाहिए? MR MR चाहिए। opcode fetch plus memory read। So 4 plus 3 is equal to 7। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो और एक बार बताइएगा तो सर। सर मूव A, M, देखो मूव A, B था तब क्या हो रहा था? B मतलब रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर कॉपी हो रहा है, सिर्फ opcode fetch से काम चल जा रहा है। मूव A, M इट्स ऑल्सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो opcode fetch तो मैंने लिख दिया, मगर क्या है ना M मतलब एक मेमोरी लोकेशन का कंटेंट है। कौन सा मेमोरी लोकेशन? जो HL रजिस्टर पे लोकेट कर रहा है। HL रजिस्टर पे जो लोकेट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आएगा एक्यूमुलेटर में, राइट? Yes. हाँ यस सर। तो वो मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट आएगा एक्यूमुलेटर में, मतलब मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट आएगा रजिस्टर में। मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट जब रजिस्टर में आएगा तो एक्स्ट्रा मेमोरी रीड लगेगा एज पर फॉर्मूला। देखो मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर एक्स्ट्रा मेमोरी रीड लगता है, मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर एक्स्ट्रा मेमोरी रीड लगता है। रजिस्टर टू रजिस्टर होने से कुछ नहीं लगता है, मगर मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर होने से मेमोरी रीड लगता है। इसीलिए एक एक्स्ट्रा मेमोरी रीड लगा। 4 plus 3 is equal to 70 स्टेट, क्योंकि opcode fetch के लिए 4 और मेमोरी रीड के लिए 3। क्यों सर? मैंने ये सारा लिखा दिया था। opcode fetch के लिए 4, मेमोरी रीड के लिए 3। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. Yes, यस sir. सर। राहुल क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट मूव B, M इट्स ऑल्सो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। सो opcode fetch देखने का जरूरत नहीं, opcode fetch बिठा दो। अभी बोलो
मूव बी कॉमा एम मतलब क्या है, फंक्शंस क्या है? रितेश बोलो। रजिस्टर टू मेमोरी, रजिस्टर टू मेमोरी, है। रितेश थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलोगे पहले क्या होता है? वो सर बी थोड़ा जो एक्सप्लेन रजिस्टर है करके वो मेमोरी बोलोगे? लोकेशन में जाएगा ना। है, बी रजिस्टर का कंटेंट एक मेमोरी लोकेशंस में जाएगा, IN जो एचएल रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशंस में जाएगा। यस सर, ठीक, एग्जैक्टली। तो रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशंस में जाएगा। यस सर, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन जाने से एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगता है? Yes, sir. यस सर, उसमें तो क्या मशीन साइकिल लगता है? Some Yes, sir. Memory right. मेमोरी Right. मेमोरी Memory राइट, right. मेमोरी राइट। उसके लिए कितना टी स्टेट लगता है? T3, sir. मेमोरी वेरी राइट गुड। सो ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी राइट थ्री इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 7 इट्स क्लियर टू यू? yes, Yes, sir. Yes. मल्टीप्लीकेशन इधर किसको आता है? अरे हाँ बोलो, मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, मारेंगे ना कान का नीचे। आता है सर। आता है सर। सब अरविंद को आता है फिर, ठीक है ना अरविंद? सिर्फ अरविंद को आता है। यस सर। वेरी गुड। अरविंद को सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आता है, किसी को नहीं आता है। आता है किसी को? आता है sir. आता है सर। सबको आता है, देखो मत बोलो। अच्छा अरविंद को अब तुमको एक क्वेश्चन करता है। अरविंद 36 इंटू 48 कितना होता है? बोलो अरविंद, कैलकुलेटर में मत करो। सर कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। वेरी गुड अरविंद, यही हम आंसर तुमको सुनना चाह रहा था। अरविंद कर पाएगा। अरविंद देखो अभी तुरंत करेगा। अरविंद 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। मतलब अरविंद का जो एएलयू है वो है एक डिजिट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अरविंद के जब 36 इंटू 48 बोला, वो बोला सर कर तो पाएंगे मगर थोड़ा टाइम लगेगा। Am I right or wrong? राइट सर। Right. सब एक मत है क्या नहीं है बोलो? Yes, अरविंद sir. 5 इंटू 6 बोला Yes, sir. सबके सामने, अरविंद तुरंत बोला 30। मगर जब भी मैंने अरविंद को बोला अरविंद बोलो 36 इंटू 48 कितना होगा, अरविंद बोला सर एक थोड़ा टाइम लगेगा हमको। क्यों? अरविंद का जो एएलयू है वो एक डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ज्यादा देने से दिक्कत है। सही है? yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी देखो INX B ए ऑपकोड फेची है क्योंकि 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। मगर देखो क्या होगा इसमें, इसका फंक्शंस क्या है? INX B मतलब क्या है? सर बीसी रजिस्टर पेयर के अंदर जो भी डाटा है उसमें 1 ऐड होगा। मतलब BC इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में बोलो BC इज इक्वल टू BC BC प्लस 1। +1। Yes, sir. यस सर। मतलब BC का कंटेंट जाएगा ALU में, ALU में BC प्लस 1 होगा एंड इधर से BC में फिर से जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो? यस सर। BC से जाएगा ALU में, ALU से जाएगा फिर BC में. BC में। सर BC क्या है? रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर, रजिस्टर पेयर है, मतलब रजिस्टर ही तो है ना। यस सर। Yes, sir. ALU क्या है? Register. रजिस्टर। यस सर। तो सर एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं चाहिए। Yes, Am I right? yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर, बट जस्ट सी BC कितना बिट का रजिस्टर है? 16। 16 वेरी गुड। ये जो ऑपरेशन हो रहा है 16 बिट ऑपरेशन हो रहा है, यस सर। मगर ALU कितना बिट का है? यस सर, 8 बिट। 8 बिट। Wait. 8 बिट ALU से 16 बिट ऑपरेशन करने से टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगेगा ही सर। एज Yes, पर sir. अरविंद, मैंने कुछ नहीं बोला, अरविंद बोला। तो ए ऑपकोड फेच ही लगेगा कि मगर इसका 6 स्टेट लगेगा। यस समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आया Yes, sir. सर। Yes, sir. 16 बिट का ऑपरेशंस करोगे ALU से, बिकॉज ALU is an 8 bit. So whenever you are doing the 16 bit operation using ALU, then there will be a problem. It's clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोलो। It's clear to all of you?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो 16 बिट का ऑपरेशंस कर रहा है 8 बिट ALU से, इसीलिए 2 टी स्टेट ज्यादा लग रहा है, 4 की जगह में 6 लग रहा है। वेरी सिंपल सा बात है। 8 बिट ऑपरेशंस होता था कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर 16 बिट ऑपरेशंस हो रहा है एज पर अरविंद। हम कुछ नहीं बोल रहे भाई, अरविंद जो बोला मैं उसको एक्सप्लेन किया। वो बोला सर मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे मगर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया उसको। क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो DCXB के लिए एक ही होगा, ऑपकोड फेच एंड सीक टी स्टेट। सिर्फ प्लस की जगह में माइनस होगा और कुछ नहीं। यस सर। ठीक। और भी कुछ कुछ देता है तुम लोगों को 1 बाइट के ऊपर। INR M, DCR M, add M। देखो INR B तो किए हो, INR M क्या होगा? कोई सोच के बताओ तो। हम जैसे किया है ऐसा लिख के करो तो गलत नहीं होगा, और हम जैसे नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं करोगे तो गलत होगा। पहले बोलो कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट। 1 बाइट। तो ऑपकोड फेच तो होगा ही होगा। यस सर। क्लास क्या होगा कि नहीं होगा तुम लोग बोलो। सर इसमें मेमोरी रीड और राइट दोनों होगा। कौन बोल रहे हो? राहुल? यस सर। एक्सप्लेन करना पड़ेगा राहुल, हम वैसा बोलने से नहीं होगा। जैसे सर यहाँ पे पहले INR M बोल रहे हैं, तो हाँ। INR M जो है सो M एक मेमोरी लोकेशन है, हाँ, मतलब जो HL रजिस्टर पेयर में स्टोर्ड है जो मेमोरी लोकेशन, वहाँ का M वहाँ का डाटा है। हाँ, तो वहाँ से डाटा आएगा ALU में। हाँ, तो मेमोरी लोकेशन से आपका आ रहा है रजिस्टर में। हाँ, ठीक है, तो इसके लिए मेमोरी रीड लगेगा। हाँ, उसके बाद फिर जो है सो ऐड करने के बाद फिर से M में जा रहा है, मतलब कि उसी मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है, तो फिर मेमोरी राइट लगेगा, अच्छा मतलब रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में जा रहा है। ठीक। एग्जैक्टली राहुल जो बोला है, राहुल के बाद जो बोला हम तो कुछ पता नहीं है, राहुल जो बोला उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार देखो, फर्स्ट है एक मेमोरी लोकेशन का कंटेंट। कौन सा मेमोरी लोकेशन हम जानते नहीं है, इसको हम बोल रहे हैं एम, क्योंकि HL रजिस्टर पेयर जिसको लोकेट कर रहा है उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट, राइट? उस मेमोरी लोकेशन से कंटेंट हम मेमोरी लोकेशन बोल रहे हैं, ठीक है? इससे कंटेंट जा रहा है ALU में, इधर हो रहा है M+1। यस। राहुल का बोलने का मतलब है सर एक मेमोरी लोकेशन से कंटेंट पहले तो रजिस्टर से ALU में जा रहा था, कोई रजिस्टर से ALU में जा रहा था, A भी ALU है, रजिस्टर A भी रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर देयर इज नो एक्स्ट्रा मैसेज साइकिल। बट अभी मेमोरी लोकेशन से ALU में जा रहा है तो मेमोरी रीड लगेगा सर, और इधर से इंक्रीमेंट होने के बाद फिर मेमोरी लोकेशंस में लौट के आएगा, इसके लिए मेमोरी राइट लगेगा। यही बोलना चाह रहे हो ना राहुल? यस सर। क्यों लगेगा ये देखो, मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर्स में जा रहा है, तो एज पर फॉर्मूला इधर फॉर्मूला लिखाया है, मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर मेमोरी रीड, मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर मेमोरी रीड, रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन मेमोरी राइट। यही को हम किया है, मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर मेमोरी रीड एंड इसके लिए मेमोरी राइट। तो इसके लिए देखो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, बट चाहिए ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी राइट, होगा 4 + 3 + 3 = 10। समझ में आया कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. DCR M सिमिलर होगा, ऑपकोड फेच सिर्फ तो इंक्रीमेंट की जगह में डिक्रीमेंट, MR + MW, 4 + 3 + 3 = 10। It's a very important, it's a very important INR-M and DCR-M क्वेश्चंस बहुत बार आता है। तुम कोई भी तुम्हारा फ्रेंड है पूछना INR-M कैसे हो रहा है, हाँ ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी राइट होता है,
कैसे? सर ने बोला है इसीलिए। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे आंसर देता है हमको, मगर क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन 90% स्टूडेंट के पास तो नहीं है कंफर्म। नेक्स्ट सर एडम क्या होगा सर? सर वन ऑफकोड फेच प्लस एमआर। ऑफकोड फेच प्लस एमआर कैसे हो रहा है? से इसमें जो है डाटा सिर्फ मेमोरी लोकेशन से एएलयू में जा रहा है, मगर एएलयू से डाटा ऐड होने के बाद देखो एक्यूमुलेटर में जा रहा है। एक है ए, एक है मेमोरी लोकेशंस। यस सर। ए से भी जा रहा है, एम से भी जा रहा है, ए प्लस एम हो रहा है, उसके बाद फिर ए में जा रहा है। ए क्या है? ए से एएलयू। यस सर। क्या है? रजिस्टर टू रजिस्टर रजिस्टर, टू रजिस्टर। मेमोरी लोकेशंस टू रजिस्टर। इसके लिए चाहिए सिर्फ मेमोरी रीड। ये भी तो रजिस्टर टू रजिस्टर ही हो रहा है, एएलयू से एक्यूमुलेटर, तो इसके लिए भी कुछ नहीं चाहिए, तो ओनली वन चाहिए, दैट इज एमआर। तो ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड, so 4 plus 3 is equal to 7. It's clear to all of you? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं कुछ 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस के लिए। टू बाइट इंस्ट्रक्शंस जैसे MVI A,3, नेक्स्ट MVI M,4E, ये दो सिर्फ। क्या होगा सर इसका? MVI A,3E क्या होगा? पहले 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मूला क्या है? लिखा तो मैंने 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए ऑफकोड फेच प्लस एमआर। ऑफकोड प्लस एमआर। ऑफकोड फेच प्लस एमआर, ये लिख देना है, इसको सोचना नहीं है, इसके बाद सोचना, इसके पहले सोचने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी क्या कर रहा है? A3 फर्स्ट स्टोर होगा टेम्प रजिस्टर। टेम्प रजिस्टर बोल के एक रजिस्टर था, WJ टेम्प रजिस्टर, ऐसा कुछ तीनों रजिस्टर था जो टेम्पोररी रजिस्टर बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा ना, टेम्प रजिस्टर इज इटसेल्फ इज अ रजिस्टर, itself is a register, so there is a no extra machine cycle is required. First it will be stored into the temp register, then it will be stored into the accumulator, so there is a no extra machine cycle, so 4 plus 3 is equal to 7. Okay, next MVI M,4E, MVI M,4E, तो क्या होगा MVI M,4E? ऑफकोड पहले प्लस एमआर प्लस एमआर, ये तो देखना नहीं है, लिख देना है। इसके बाद क्या करेगा? ये जो 4E है ना, ये 4E फर्स्ट टेम्प रजिस्टर में स्टोर होगा, टेम्प रजिस्टर के अंदर पहले स्टोर होगा 4E, यस उसके बाद जाएगा मेमोरी लोकेशंस में, उसके बाद जाएगा मेमोरी लोकेशन में। फर्स्ट स्टोर होगा टेम्प रजिस्टर, 4E स्टोर होगा इसमें टेम्प रजिस्टर के अंदर, देन जाएगा मेमोरी लोकेशंस में। तो रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन मेमोरी क्या होगा? मेमोरी राइट। राइट। मेमोरी। So 4 plus 3 plus 3 is equal to 10. It's clear to all? Yes, sir. यस सर। Yes, अभी हम sir. जा रहे हैं कुछ 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस के लिए। LXI H, 8500H, LDA
8600H, STA 8700H। ये तीनों इंस्ट्रक्शंस मैंने दिया है। LXI H, 8500H क्या काम, कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है? पहले 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक ना? 3 बाइट का सर। 3 बाइट। 3 बाइट के लिए फॉर्मूला क्या है सर? सर 3 बाइट सर। 3 बाइट के लिए फॉर्मूला क्या? प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड। ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड, ये हम लिख दिया। ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड। ये क्या काम करेगा सर? H के अंदर 85 स्टोर करेगा, L के अंदर 00 स्टोर करेगा। यस सर। हाँ या ना में बोलो। यस सर। H के अंदर 85 स्टोर करेगा, L के अंदर 00 स्टोर करेगा। फर्स्ट टेम्प रजिस्टर में स्टोर होगा, देन H एंड L में स्टोर होगा। So there is no extra machine cycle. So opcode fetch plus memor and memor. So 4 plus 3 plus 3 is equal to 10. Next, coming into the second. ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है सर? LDA 3 बाइट। 3 बाइट। 3 बाइट सर। फेच प्लस MR प्लस MR, ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद क्या काम करता है सर बोलो? LDA का फंक्शन क्या है? LDA का फंक्शन क्या है? सर एक्यूमुलेटर में कॉपी करेंगे इसके डाटा को, मतलब 8600 के अंदर जो डाटा है उसको एक्यूमुलेटर में 8600 का मेमोरी लोकेशंस में जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी करेगा। मतलब वही हुआ ना, मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर। मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर मतलब क्या होगा? प्लस मेमोरी रीड। मेमोरी रीड। 4 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 13. Clear? Yes, sir. STA 8700H क्या होगा सर? एक्यूमुलेटर से कॉपी होगा मेमोरी लोकेशन में। पहले तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस है, ऑपकोड Yes, sir. फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड तो होगा ही, प्लस क्या होगा सर? मेमोरी राइट। मेमोरी राइट, क्योंकि एक्यूमुलेटर से जाएगा 8700 में। सो होगा 4 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to 13. कंप्लीट? यस सर। अभी सर तुम लोगों को लग रहा है ये सर तो कर दे रहे हैं, हम लोग घर में कैसे करें? थोड़ा डिफिकल्ट तो है ऐसा। तुम लोग अभी नया नया शुरू कर रहे हो, हम जितना कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं तुम लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है कि नहीं? यस सर। तो इसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने एक पेज फिर से दे रहा हूँ जो तुम्हारा काम में आएगा। अभी हम शेयर कर रहा हूँ वो जो बुक्स मैंने बोला था, सोनक सर ने बुक्स देगा, ठीक है? एक दे दिया सर। दे दिए सर। दे दिए दे दिया। वो हेक्स कोड चार्ट उधर से मिल जाएगा। अच्छा अलग से मैंने एक इंस्ट्रक्शंस देने बोला, वो दे दिया शायद। यस यस वो इंस्ट्रक्शन जो जितना सारा इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर है। हम एक बार बुक लिख रहा था, उसके बाद टाइम नहीं मिला इसने नहीं लिख पाया, तो मगर उसको कंप्लीट करना है तो चलो वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस वाला तो पूरा लिखे थे मैंने, तो इसीलिए वो पूरा लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना एक बार। इंस्ट्रक्शन जो जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ाया अभी तक देख लेना, बाकी भी बहुत सब पूरा इंस्ट्रक्शन उसमें है, बाकी हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत जो हुआ है उसको एक बार देख लेना, इंस्ट्रक्शन तो आएगा, पढ़ना पड़ेगा। और बुक से पहले हेक्स कोड लगेगा, अभी हम जो बोल रहे हैं और एक पेज लगेगा, वो हम जा रहे हैं अभी। ये पेज नंबर नोट करके रखो।
783 देखो, 782 देखो, 781 एंड ए है 780। ठीक है सर, कौन सा इंस्ट्रक्शन दिखाए? पहले हम दिखते हैं जो INR-M में क्या बोल रहे हैं। INR-M में ठीक है, देखो INR-M इस पेज में नहीं, अच्छा इस पेज में इसका फंक्शन बोल देता है। पहले लाइन में जो है ये सारा इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शंस का फंक्शन, वो भी छोड़ दो। ये है कोड, वो भी नहीं चाहिए। तुमको चाहिए B/M/T²। बी मतलब कितना बाइट का इंस्ट्रक्शंस है, M मतलब कितना क्या क्या कितना मशीन साइकिल लगेगा, एंड T² मतलब T स्टेट, कितना T स्टेट लगेगा। अभी इधर देखो मशीन साइकिल मतलब क्या क्या मशीन साइकिल इसमें है वो लिखा हुआ है, क्या क्या मशीन साइकिल चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं INR-M में क्या होता है। देखो INR-M, ठीक है, INR-M के सीधा लाइन में जाओ। 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, कितना मशीन साइकिल चाहिए बोलो? 3 और कितना टी स्टेट चाहिए? 10 10। अभी देखो, अभी तुमको लगता है सर हम लोग जो मशीन साइकिल बोला वही हो लगेगा, एक बार वो भी देख लो। यस सर। फेच रीड राइट, देखो 1 3 10 फेच रीड राइट। कैसे पता चलेगा? एप मतलब क्या है, इधर लिखा हुआ है फेच विथ 4 टी स्टेट। आर मतलब क्या है, लिखा हुआ है मेमोरी रीड। उसके बाद देखो W मतलब क्या है, मेमोरी राइट, फेच रीड राइट। तो ऐसे करके इस पेज से तुम लोग जो देखोगे उसको तुम लोग सही से देख सकते हो इधर से, जो तुम लोग सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। मान के चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, ऐड एम में क्या है, कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर। सो 1 2 3 4 5 नंबर। 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, 2 मशीन साइकिल लगेगा, 7 टी स्टेट लगेगा। देखो फेच एंड रीड लगेगा। यस इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा टाइमिंग डायग्राम का, जितने सारा कैसे टाइमिंग डायग्राम होता है वो हम बता दिया आज। अभी इसके बाद जो करना है हम लोगों को टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट? इसके बाद हम लोगों को करना है टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या क्या टाइमिंग डायग्राम है उसको हम लोगों को ड्रॉ करके जाना है। बिफोर ड्रॉ करना, आज तो उतना टाइम नहीं मिलेगा तो ड्रॉ हम कर नहीं पाएंगे। फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक प्रोग्राम में चला जाता है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू प्रोग्राम, यस्टरडे मैंने बोला था, तुम्हारा याद है कि नहीं है पता नहीं है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कैसे चेक कर सकते हैं? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कैसे चेक कर सकते हैं बोलो? सर DA इंस्ट्रक्शन से। हाँ, कॉपी देख के सर। यस सर। सर कॉपी ना देख के बोलना चाहिए ना। अच्छा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो बोला है DAA इंस्ट्रक्शन से करता है। अभी DAA इंस्ट्रक्शन है क्या? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। जस्ट सी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट आई शो यू सम मैजिक। ये इंस्ट्रक्शंस का फंक्शंस जो है सारा हम जो नोट्स दिया है उसमें लिखा हुआ है, तो तुम लोग को अभी समझना है। लिखा का जो लिखने का पार्ट था मैंने दे दिया, जो बाकी भी कॉलेज का स्टूडेंट लोग कर रहे हैं मैं तुम लोगों को बोलूंगा वही करने के लिए। ये जितना सारा है 20-30 पेज जितना है वो सारा देख के कॉपी में लिख लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक बार लिखने से तुमको बहुत काम में आएगा, पूरा जिंदगी भर काम में आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कॉपी में रहने से तुम लोग कर पाओगे। तो DAA है
फुल फॉर्म है डेसिमल एडजस्टेड एक्यूमुलेटर। हम लोग डेसिमल एडिशंस का टाइम में हम लोग यूज करते हैं। वी आर यूजिंग DAA इज यू नो to add the decimal number, to add the decimal number. DAA actually doing the 4 functions. DAA doing the 4 functions. First 1A चेक करेगा लोअर निबिल greater than 9 और auxiliary carry flag set in A है 1B, A 1B, this is 1B। either चेक करेगा फर्स्ट लोअर निबिल ग्रेटर देन द 9 है कि नहीं, और देखेगा नेक्स्ट ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट है कि नहीं। इन दोनों ही केस में ये होगा, कोई भी एक होगा तो ऐड 06 विद द रिजल्ट, ऐड 06 विद द रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट 2A चेक करेगा हायर निबिल ग्रेटर देन द 9 और 2B कैरी फ्लैग सेट है कि नहीं। इन दोनों ही केस में ऐड 60 विद द रिजल्ट, ऐड 60 विद द रिजल्ट। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। पहले चेक करेगा लोअर निबिल 9 से बड़ा है कि नहीं, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट है कि नहीं, दोनों के बीच में एक होगा तो 06 ऐड करेगा। हायर निबिल ग्रेटर देन द 9 है कि नहीं एंड कैरी फ्लैग सेट है कि नहीं, उसके बाद 60 ऐड करेगा। अभी तुम लोगों का कोई क्वेश्चंस नहीं है ना? है क्वेश्चन है सर? हाँ बोलो सर 6 और 60 क्यों ऐड करेंगे सर? 0.6 और हाँ, वही तो तुमको जादू दिखाने के लिए, वो तो जादू दिखाने के लिए। देखो जादू, उससे ही तो तुम्हारा काम जादू होगा। बाकी तुम्हारा कोई क्वेरीज नहीं है ना? सर ग्रेटर देन 9 एंड ग्रेटर देन सर 9। दोनों में से कोई कंडीशन एक रॉन्ग हो जाता है तो सर? मान के चलो एक कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा चेक नहीं करेगा। अच्छा दोनों ठीक। चेक करके कोई भी नहीं ट्रू हुआ तो 06 ऐड नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। अच्छा ठीक। ये चेक करेगा, ये ट्रू हो जाएगा तो ये चेक नहीं करेगा, 60 ऐड कर देगा। ये चेक करके रॉन्ग आया तो इसको चेक करेगा, ये होगा तो 60 ऐड करेगा, दोनों नहीं होगा तो 60 ऐड नहीं करेगा। क्या समझते हो लोअर निबिल एंड हायर निबिल मन के बोल के? नहीं अभी अरविंद तुम्हारा कान के नीचे बजाएंगे। सर हम पूछे थे तुम्हारा कोई क्वेरीज है कि नहीं है, तुम लोग बोला कुछ नहीं है सर। अभी बोला जो लोअर निबिल क्या है पता नहीं है सर। नहीं सर, हम ऐसा नहीं बोले क्वेश्चन। सर लोअर निबिल होता है जब हम लोग किसी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 4 सर निबिल मतलब क्या है? निबिल मतलब क्या है? निबिल मतलब तो नहीं याद है सर। कोई भी डाउट्स है? 2 + 2 = 4 क्यों है हमको पूछो। आई विल नॉट बी एंग्री। सर 4 तुम लोगों को पता नहीं है, आज भी पूरा टेक्नो में एवं हर एक जगह में बोलता है चाईबासा इज माई हार्ट। हम चाईबासा को इतना प्यार करते हैं, मतलब पहला बैच ऐसा मिला हमको जो मतलब इतना मतलब रिस्पांस नहीं देता है, क्लास में नहीं आता, ऐसा बैच हम कभी नहीं देखा। चाईबासा इज माई फेवरेट कॉलेज। हम 2 साल था चाईबासा में, ऐसा बैच मैं कभी नहीं देखा। सच में बोल रहा हूँ, मैं चाईबासा को बहुत प्यार करता हूँ। बोलो निबिल क्या है? चलो हम समझाते हैं, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, साथों साथ ये भी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है, याद रखना। अभी मान के चलो एक एडिशन दिया है 85 एंड 36। ये एडिशंस माइक्रोप्रोसेसर में क्या करेगा और डेसिमल में क्या होना चाहिए? 85 36। पहले कर रहे डेसिमल में, जो तुम लोग करते हो क्या होना चाहिए डेसिमल में, प्लेन एडिशंस। 5 + 6 कितना होता है?
11 sir. 1 इधर, कैरी इधर, तो 8 प्लस 3 12 11 प्लस 1 12, यही तो होता है ना Yes, sir. yes sir. तुम्हारा डेसिमल एडिशन। ये हम मतलब करना चाहता है, मगर माइक्रोप्रोसेसर डेसिमल एडिशन करेगा तो करता नहीं है, करता है तो पहला दिन बताया था No, sir. माइक्रोप्रोसेसर डेसिमल समझता ही नहीं है। वो सारा दोनों को हेक्साडेसिमल में लेगा, हेक्साडेसिमल का लेकर क्या ऐड करेगा, b प्लस 6 कितना होगा 11, 11 मतलब 11 B. मतलब B. and 8 plus 3 मतलब B. अगेन b, bb, B. वाइफ नहीं है, bb, ठीक है। तो Yes sir. ये रिजल्ट आएगा बीबी, मगर हमको करना है ऐसा। ये कौन करेगा, डी डबल ए कर देगा बीबी को 121 में। पहले चेक करेगा निबिल मतलब लोअर निबिल मतलब है 4 डिजिट, निबिल मतलब 4 डिजिट, लोअर निबिल मतलब ये लास्ट वाला नंबर, समझ में आया। Yes, sir. लोअर निबिल माने मतलब ये लास्ट वाला नंबर, एंड हायर निबिल मतलब ये वाला नंबर। इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई भी नंबर का लोअर निबिल मतलब लास्ट वाला डिजिट एंड हायर वाला निबिल मतलब फर्स्ट वाला डिजिट, यही होता है। निबिल मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 4 डिजिट मिलेगा, निबिल मतलब 4 बिट। तो ए बी 9 से बड़ा है क्या छोटा है? बड़ा है सर. बड़ा है, तो बीबी के साथ 06 ऐड होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. 1A हमारा ट्रू हुआ, 1A हमारा ट्रू हुआ, तो 1B हम चेक नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। इट्स क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. अभी 2A चेक करेंगे, हायर निबिल माने कौन सा? B. ए First term. इधर वाला 9 से बड़ा है, Yes sir. Yes, sir. तो ऐड कितना होगा 60. 60। तो बी मतलब कितना है 11. 11, sir. 11 प्लस 6 कितना होता है 17. 17 से कितना सब्ट्रैक्ट होगा 16. 16, कितना आएगा Carry 1. 1. 1, एंड इधर जाएगा 1। बी मतलब कितना है सर 11. 11. 7 प्लस 16, 17 प्लस 1 18, 18 माइनस 16. 16 again 2 coming here as 16 means 16 into how much 1 coming here as a carry, so 120 answer, 120 answer। देख रहे हो ए डी ए डबल ए करता है। और भी एग्जांपल तुम लोगों को दिखा रहा है, और भी एग्जांपल दिखा रहा है, जैसे मान के चलो 28 and 38, 28 and 38 डेसिमल में करने से क्या होगा सर 6. बोलो हैं 6. 66 होगा। Yes, sir. अभी इसमें देखते हैं 8 प्लस 8 16 मतलब क्या होगा हेक्साडेसिमल में 0. 0 कैरी सर 1. वेरी गुड। इधर क्या होगा सर 6. सर अभी इसके ऊपर ट्राई करो। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला 1A If lower nibble is greater than 9. 0 9 से बड़ा है No sir. Sir. कंडीशन नॉट ट्रू, कंडीशन नॉट ट्रू। 1B ऑक्सिलरी का रिफ्लेक्स सेट है। ऑक्सिलरी रिफ्लेक्स कैसे सेट होता है ये एडिशन होने से इधर कैरी जाने से ऑक्सिलरी का रिफ्लेक्स सेट होता है, जो गया है देखो। Yes, sir. Yes, sir. तो कैरी ऑक्सिलरी का रिफ्लेक्स सेट है Yes sir. वेरी गुड। तो एट 06 विद द रिजल्ट
Higher nibble greater than the 9? No, sir. No, sir. Carry flag set, carry flag आया है सर? No, sir. No. कोई कैरी नहीं आया, ओनली 6 ऐड होगा, 66 हो जाएगा। देखो ए बी 66, ए बी 66। इट्स क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, मान के चलो 82 प्लस 93। (82 + 93) डेसिमल में क्या आएगा? 5। इधर क्या आएगा? 17. इधर क्या होगा? बोलो। 1. 115। यस सर। अभी 115 के साथ डी डबल करने से क्या होगा? ये ग्रेटर देन द 9? No, sir. तो 06 ऐड नहीं होगा सर। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट, इधर कोई इसको कैरी आया जो इधर सेट हुआ है? No, sir. नो सर। तो नहीं No, होगा sir. सर। इधर ए 9 से बड़ा है? Yes, sir. No, sir. ये No, सर sir. कैसे होता है सर? सिर्फ इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये तो कैरी है, इसके बारे में छोड़ दो। ये Yes, sir. छोटा है. छोटा है, 1 है, छोटा है। कैरी फ्लैग सेट है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So add 60 with the result. 571, 175, 175. It's clear to all of you? यस सर। Yes, sir. Sir. नेक्स्ट, ये प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल होगा? शौनक, are you hear me? Yes, sir. तो अटेंडेंस लेना चाहते तो ले लो। Yes, sir. Next, you can see how to add two numbers in a decimal. Say, if I'm talking about the questions, so the questions will be like that. Write an assembly language program which is add two decimal number. Write an assembly language program which is add two decimal number 25 and 46, 25 and 46, 25 and 46, and store the result in 8600H in decimal form. Store the result in 8600H in decimal form. कैसे होगा? MVI A, 25H, MVI B, 46H, add B. देखो add B जब करेंगे तो क्या एडिशन होगा? इटा ये डेसिमल एडिशन होगा क्या हेक्साडेसिमल एडिशन होगा? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। मगर हमको चाहिए क्या सर? डेसिमल सर। डेसिमल। तो कैसे क्या करना पड़ेगा सर? इसके बाद हम करेंगे डी डबल ए। इसके बाद हम करेंगे डी डबल ए। तो ये जो हेक्साडेसिमल में एडिशन हुआ था वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही आएगा। तो सर इसके बाद हमको कौन सा मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है? 8600। कैसे करेंगे सर? बोलो। STA 8600H। नेक्स्ट HLT हो गया प्रोग्राम। इट्स क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Thank you to all.
I'm ending my class today because you have a, other activities in 4 o'clock. Whether it's possible of classes Monday, so talking with the Shronak sir, I am free, no issues for that from my side. If possible for classes Monday, so you are talking with the Shronak sir. If possible, so if he inform me, so I will be taking the classes, no issues. Otherwise, your classes will be on Friday. Again on Friday. Okay. Thank you, sir. Okay. So, hello. Yeah, so students, Monday, as Monday is a holiday, so what time will be the suitable for your classes? At the afternoon time or the morning time? At the same time as today's class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so on Monday from 2 p.m. the class will be there. Okay? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you everyone. Thank you, sir. Okay. Okay. Bye bye everyone. Good and very good day for today. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you.